Okay. So today we will discuss something from the first chapter. Okay. First of all, tell me that what is the difference between evaporation and boiling? This question has come in your exam. Yes, ma'am. So what is Evaporation is a surface phenomenon and boiling is a bulk phenomenon. Evaporation takes place at any temperature, but boiling takes place at its boiling point only. Evaporation causes cooling and boiling causes submergence. okay? Listen one thing. Both boiling and evaporation, liquid changes into gas. Okay, liquid changes into gas. But what is the basic difference between the two? Difference is that it always takes place at boiling point and it takes place below boiling. Below boiling point, whatever is taking place, that is called what? That is called evaporation. For evaporation, there is no any fixed temperature. It takes place at any temperature. Then it's called what? Evaporation. In both the process, liquid is changing into gaseous form. This process in one way or the other you can say is what? Exothermic. क्या है ये? Exothermic. एक्सो का मतलब क्या होता है? एग्जिट. एंड थर्मिक का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स हीट. So energy in the form of heat is released in this process, and that's why what happens that when you touch any boiling water, it gives you a burning sensation. It gives you a burning, jalan jaisa hota hai. But evaporation is going on. If you keep water on your roof, छत पर अगर आप किसी बर्तन में कर पानी को रख दोगे तो क्या देखोगे कि कुछ दिन में पानी गायब इवापोरेट हो जाएगा. इवापोरेट हो गया. तो क्या हुआ था? एक्चुअली इवापोरेशन प्रोसेस हुआ था. बट इफ यू ब्रिंग योर हैंड नियर दैट वाटर, यू वोंट हैव एनी काइंड ऑफ हीटिंग इफेक्ट देयर. वहां पर आपको कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा. जबकि जब आप वाटर बॉयल हो रहा है और वहां पर अगर हाथ ऐसे करोगे, then you will get a heating effect. Why? Because their heat energy is released. Energy is released, so you are getting heating effect. But in evaporation, there is no energy released. Rather, यहाँ पर ये प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक है. एंडोथर्मिक मीन्स व्हाट? यहाँ पर आपका जो हीट है वो क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है. हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग. So in turn, Yes. it is going to give you what? A cooling effect. When water boils, it is very fast process. It is fast and it is violent also. Fast and violent. And evaporation is what? Slow and silent. When evaporation is taking place, you will not know that evaporation is taking place, but evaporation is taking place. When there is boiling, you will know that boiling is going on. Why? Because वहां पर जो है आवाज, साउंड भी होता है. ओके, साउंड होता है वहां पे, एंड वो प्रोसेस जो होता है बहुत ही फास्ट होता है. That is the basic difference between what? Evaporation and boiling. And besides, boiling does not depend upon factors like wind, humidity, a surface area, but evaporation depends upon all such factors. There was one question in your class exam periodic test that you have to give one example of evaporation which is affected by surface area. Yes, ma'am. था ना एक क्वेश्चन. तो वहां पर आप कोई भी एग्जांपल दे सकते थे. ड्रिंकिंग टी फ्रॉम सॉसर, देन अ कप, spreading of cloth. So all these were example of what? Were example of evaporation which is affected by increase in surface area. Okay, everybody. Now Yes, students ma'am.
good in numbers, so I think Yes, ma'am. I should do something from your that chapter. Yesterday I was telling you about what element. How many kinds of element are there? Metal hai, non-metal, 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 metalloid, metal, and metalloids. And metalloids. So today, first of all, we'll discuss about what metal. What is metal? We will discuss. Yesterday we also discussed that Na plus, Mg2 plus, Al3 plus, K plus, O2 minus, N3 minus, Cl minus. So you can see some of the elements having negatively charged, some of the elements positively charged. There is differentiation. So you can identify the element which is positively charged as what? As a metal. And negatively charged as a what? As a non-metal. किसके तरह identify करेंगे? Non-metal की तरह. Now question here arises that why certain elements are positively charged and certain elements are negative. Boiling is exothermic process, Ujjwal. Okay, why certain processes are who is it? मैम आप ही का हैंड है Huh? मैम आप ही हैं So certain certain elements are what? Metal, and certain are what? Certain are non-metal. So now we have to see that how certain elements get negatively charged or positively charged. For this, yesterday I was telling you कि कोई भी element जो होता है, element is made up of what? Atoms, and atoms are made up of what? Electron, proton and neutron. इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव है. प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव होता है. न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल होता है. दिस इज न्यूट्रल. दैट इज व्हाई ऑन एनी एटम, जैसे सोडियम क्या है? सोडियम एटम. सोडियम का एलिमेंट किस चीज से बना है? तो सोडियम के एटम से बना है. एटम पे कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है. पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज नहीं है. मैग्नीशियम पे कोई चार्ज है? कोई भी चार्ज नहीं है. क्लोरीन पे कोई चार्ज है? कोई भी चार्ज नहीं है. तो ये चार्ज आता कहाँ से है? How metal elements get positively or negatively charged? For that, atomic number, yesterday I discussed about what? Distribution of electron in the shells K, L, M and N. मैंने आपको बताया था कि K का कैपेसिटी क्या है? 2 है. L का कैपेसिटी क्या है? 8 है. M का कैपेसिटी 18 है. और N का कैपेसिटी उससे ज्यादा 32 है. तो 32 है. तो दिस इज फिक्स्ड. ये क्या है? फिक्स्ड है. जैसे कि सोलर सिस्टम में कौन से ऑर्बिट में कौन सा प्लैनेट होगा, किसका क्या पोजीशन होगा, दैट इज फिक्स्ड. इन द सिमिलर वे, इन द सेल, K shell how many electron will be there, L shell how many electron will be there, M shell how many electrons will be there, that is also what? Fixed. Is this point clear to you? yes ma'am. yes, ma'am. Now suppose we are going to write the electronic configuration of the element. Why we will write the electronic configuration of the element? Because from there we will come to know that which one is stable and which one is unstable. Okay, stable का मतलब क्या होता है? Last shell have 8 electron. If its last shell is having 8 electron, then it is what? Stable. Okay, if the last shell is having 8 electron, then it is what? Stable. And if the last shell is having less than
8 electron, then it is called what? Unstable. So all the element want to become what? Stable. सभी एलिमेंट क्या चाहते हैं? स्टेबल होना। और स्टेबल होने का मतलब क्या है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स का होना? 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना। और इस 8 इलेक्ट्रॉन्स के होने के लिए एटम्स क्या करते हैं? एटम्स आइदर लूज और gain what? Electron. Either they lose the electron or they gains the electron. Is this point clear to one and all? Yes, ma'am. मैंने क्या बताया? सभी एलिमेंट क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ऑल द एलिमेंट्स आर व्हाट? दे आर अनस्टेबल। व्हाट डू दे वांट टू डू? दे वांट टू बिकम स्टेबल। हाउ डू दे बिकम स्टेबल? How do they become stable? Either they lose electron or they gain electron. Is this point clear to one and all? If it is clear, please raise your hand. Raise your hand if it is clear. Quickly. Every atom's element is unstable. There are few exceptions जो कि क्या है? Stable है। जैसे कि जितने भी inert gases हैं, कौन कौन हो गया? हीलियम, नियॉन, आर्गन, xenon, क्रिप्टम, ये सब क्या है? ये सब नोबल गैसेस हैं। all of them are stable and all the rest of the element what are they are unstable। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब हैं अनस्टेबल। तो सब क्या करेंगे? they are going to become stable। how they will become stable? for that what they have to do? either they have to lose electron or they have to gain electron। got it? मैम मेरा क्वेश्चन था हाँ, कि मैम कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उसका लास्ट सेल में 4 बचेगा, तो मैम मेटल होगा या नॉन मेटल होगा मैम? ये तो होगा नॉन मेटल ही। देखो कैसे नॉन मेटल होगा वो भी बताएंगे। सबसे पहले तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है? 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो डिस्ट्रीब्यूट करो इसको K, L और M में जल्दी। एवरीबॉडी 1 फर्स्ट शेल में क्या होगा? क्या होगा फर्स्ट शेल में? 1 फर्स्ट शेल में क्या होगा? 1 होगा। 2 का क्या होगा फर्स्ट शेल में? 2 होगा। ओके। 3 का क्या होगा? 2 2। 4 का होगा मैम, 4 का भी 2। तो यहाँ 2 कहाँ? 2 और 3 कहाँ हुआ? टोटल तो 3 नहीं हुआ, यहाँ तो 2 ही है। तो बाकी जो एक बचा वो कहाँ जाएगा? मैम एक का 1 होगा, L का 1। L में 1 जाएगा, ठीक है। चलो Yes, 4 ma'am. का क्या हो जाएगा? 4 का 2 हो जाएगा मैम K में, और L में हो जाएगा मैम 2। L में भी 2 हो जाएगा। 5 Yes, में ma'am. K में कितना मैम K होगा? में 2 और L में 3 6 का 2 हो जाएगा मैम, K में 2 और 4 मैम, उसके बाद 4 मैम, 7 का 2 और 5 और 8 का मैम, 2 और 6 6 और 9 का 2 मैम, इसका 7 भी 2 होगा। 2 और 7 हो जाएगा। और 10 का क्या होगा? 2 और 8। ठीक है। अब देखो लास्ट शेल में ये जो है ये इसका लास्ट शेल है। ये सभी मैम का 10 क्या है? में क्या होगा लास्ट मैम? शेल है। 10 में L का Listen, this one is the last shell. Here in the last shell there is 1 electron. Here it is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now the last shell में अगर 1 है, 2 है और 3 है
क्या है 1 2 and 3, तब ये क्या होगा, तब ये हो जाएगा मेटल। क्या हो जाएगा, मेटल। मेटल। और अगर लास्ट शेल में है 4 5 6 और 7, then it is what, non metal। ठीक है, is it clear to all? यस मैम। now यस मैम। इसके बाद कुछ और एलिमेंट्स का हम लोग देखते हैं। 11, मैम अगर लास्ट सेल में 8 होता तो क्या होता मैम? लास्ट शेल में अगर 8 है तो ये क्या है, ये स्टेबल है। ये क्या है, स्टेबल। अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब ये स्टेबल है, तो ना ही ये लूज करेगा ना ही ये गेन करेगा। neither it is going to lose nor it is going to gain, it is not going to do any kind of reaction। ओके मैम मेटलॉइड हो जाएगा ना ये मैम? नहीं, ये मेटलॉइड नहीं है, ये नोबल गैसेस है। ओके मैम। ठीक है, मैम ये ये क्या है, नाइदर इट इज, हाँ नाइदर इट इज क्या बोले मैम? नाइदर इट इज, neither it is a metal nor it is a non metal nor it is a metalloid। इसको क्या हम कहते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। जो स्टेबल होते हैं दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। दे आर अनरिएक्टिव, व्हाई, because they are stable so they are not going to react। now for Yes, some ma'am. write down quickly, आप खुद से लिखना। मैंने दिया 11 12 13 14 15 16 17 and 18 तक दिया, जल्दी लिखो। कॉन्फ़िगरेशन लिखो जल्दी सब। इलेवन का क्या होगा, 2 8 1। 2 8 1, वेरी गुड। चलो अब बताएगा मुझे राहुल, राहुल बताओ 12 का क्या होगा। 12 का क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, फर्स्ट शेल में कितना होगा राहुल। इज नॉट देयर। सालवी प्रिया, शालवी, यस मैम। हाँ बोलो तो 12 का इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा फर्स्ट शेल में। फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड, 8, थर्ड, 2, 2। ओके, 13 का कैसे होगा, 2 8 3। 2 8 3। चलो नेक्स्ट कौन बताएगा मुझे, सुशील, सुशील। यस मैम। हाँ चलो बोलो 14 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। मैम 14 का, हाँ मैम फर्स्ट सेल में 2, हाँ सेकंड में 8, हाँ, फोर्थ, हमें थर्ड सेल में 4। ओके। नेक्स्ट उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत्कर्ष इज नॉट देयर। उज्जवल, यस मैम। हाँ बोलो 15 का कैसे होगा, 2 8 and 5। 2 8 and 5। 16 का 2 8 and 6। 2 8 and 6, 2 8 6। 17 का 2 8 and 7। 2 8 7। 18 का 2 8 and 8। अच्छा। now tell me that out of these which one is stable, which one is stable। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 and 8।
In the last shell, we are having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So, which is considered to be stable? The one in which the last shell contain what? 8 electrons. Last shell if contain 8 electron, that will be considered as what? Stable. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये मतलब कि जो 18 है, 18 क्या है? स्टेबल है, ना ही ये लूज Yes, ma'am. करेगा, ना ही ये गेन करेगा, ना ही ये कोई रिएक्शन करेगा. तो यहाँ लूज और गेन कौन करेगा? कौन करेगा? 1 से लेकर के 7 तक वाला. Why? Because all of them are what? All of them are unstable. Unstable. Have you understood what is stable and unstable? First of all, Yes, ma'am. clear to all? What is stable? Stable means the one which is having 8 electron in the last shell. What do you mean by unstable? The one which is having 1 to 7 electron in the last shell. All those elements will be considered as what? What? Unstable. They will be Unstable. called as unstable कहेंगे उनको. तो जो अनस्टेबल रहेगा वो स्टेबल होने के लिए, अनस्टेबल जो है स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? Gain और lose. लूज करेगा या फिर गेन करेगा? क्या लूज करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. क्या गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन ma'am. गेन करेगा. अब ये जानो कि किसी एटम में जो है हाइड्रोजन इज unstable because its first shell is containing 1 electron, it is unstable. लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम का स्टेबिलिटी 8 में नहीं होता है, उसका स्टेबिलिटी ड्यूप्लेट में होता है, और इन सभी का स्टेबिलिटी जो है दैट इज इन द ऑक्टेट. But hydrogen and helium, they have stability in the duplet. Duplet means 2 electron. Oct का मतलब क्या होता है? 8. 8 ऑक्ट मतलब क्या होता है? 8 होता है, और rest of the element they are stable in 8 electron. So atom consists of equal number of electron and proton. Is it or not? Tell me, is Yes, it or ma'am. not? So if the number of electron it is going to lose, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, then what does it mean? What relation they will have? Proton is greater than electron. Positive charge. तो एटम पे क्या चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव डेवलप होगा. Positive. कितना पॉजिटिव? जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतना पॉजिटिव. क्योंकि जब पॉजिटिव ये जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो इलेक्ट्रॉन कम गया और प्रोटॉन इज मोर. एंड अकॉर्डिंग टू मैथ्स वी फॉलो दैट जिसका ये मैग्नीट्यूड बड़ा होगा साइन उसी का फॉलो होगा. है या नहीं? Yes, ma'am. सो इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? अगर कोई एटम जो है, इसको मैं रब करती हूँ तो अगर कोई एटम क्या है? अनस्टेबल है, इसको क्या बनना है? स्टेबल एटम बनना है. then what it can do? either it can lose or gain. एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होगा, लेकिन जब स्टेबल एटम बनेगा मतलब तब उस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल नहीं होगा, और इसलिए ये जो है वो क्या बन जाएगा? चार्ज्ड बन जाएगा. क्या बन जाएगा? Charge. चार्ज बनेगा. क्यों चार्ज बनेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल नहीं होगा. बिकॉज मैम ये एटम के नीचे क्या लिखा है? एटम के नीचे चार्ज्ड. मैम बगल वाला, उसके बगल वाला.
unstable. ओके अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है? आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, देन यू विल अंडरस्टैंड, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट. चलो हम सोडियम लिए, ठीक है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है. व्हाट इज क्लियर और नॉट? यस मैम. 11 होता है. इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? 2 8 1. अब मुझे बताओ क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? Unstable. अनस्टेबल. अनस्टेबल. स्टेबल कब बनेगा? मैम जब एक लॉस करेगा. तब ना इसमें 2 8 हो जाएगा, लास्ट शेल में 8 आ जाएगा. अगर ये एक लूज कर देता है तब लास्ट शेल में क्या बन जाएगा? अब ये मान लो Na, जब 2 8 बनेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो था 11, प्रोटॉन था 11, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया 10 और प्रोटॉन हो गया 11. ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो इसमें क्या चार्ज लेगा? पॉजिटिव. इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. कितना पॉजिटिव? तो जितना लूज किया उतना पॉजिटिव. Yes, ma'am. Is the point clear? यस मैम. One more example I'll give you. Aluminium. अब इसका क्या है? 13 होता है एटॉमिक नंबर. तो यस मैम. इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 2 8 एंड 3. क्या होगा? 2 8 एंड 3. अब ये बताओ स्टेबल है या अनस्टेबल है? Unstable. अनस्टेबल. अनस्टेबल. स्टेबल कैसे होगा? 5 को गेन हम करेगा क्या या मतलब 3 3 को इलेक्ट्रॉन लूज लॉस करेगा? करेगा. Will it gain Lose. 5 electron or it will lose 3 electron? Tell me what will be easy? मैम लॉस 3 इलेक्ट्रॉन. 3 इलेक्ट्रॉन. तो बेटा एक चीज याद रखो कि अगर लास्ट शेल में 1 है, 2 है, 3 इलेक्ट्रॉन है, it will always lose. It will always lose electron. क्या करेगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज Lose करेगा. इसलिए एल्यूमिनियम भी क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को लूज जब कर देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना था? 13. प्रोटॉन कितना था? 13. लेकिन अब ये जो एल्यूमिनियम बनेगा ये क्या है? 2 8. इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 और प्रोटॉन कितना है? 13. ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव. तो एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज आएगा? 3 plus. 3 plus. प्लस आ जाएगा. समझ गए आप लोग? Yes, ma'am. क्लियर यस है? मैम. नाउ डू वन. मैग्नीशियम का बनाओ जरा. उज्जवल कांत, व्हाट इज नॉट क्लियर? मैम लास्ट समझ में नहीं आया. क्या? ये इलेक्ट्रॉन और Three- प्रोटॉन. यस मैम. देखो पॉजिटिव और नेगेटिव. क्या इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जब 3 इलेक्ट्रॉन कम गया, किस लिए कमा? स्टेबल होने के लिए. ये क्या था? ये अनस्टेबल था. क्यों? बिकॉज लास्ट शेल वाज हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन, सो दिस वाज अनस्टेबल. It wants to become stable. So how it will become stable? There is 2 options to become stable. Either gain 5 electron or lose 3 electron. So which one is a easy process? By losing 3 electrons. जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का ही डिस्ट्रीब्यूशन ना है. इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो ये हो जाएगा 10. Yes ma'am. लेकिन प्रोटॉन, इन प्रोटॉन there is no change. Proton will remain as it is. Proton will remain as it is. This was having negative charge, this was having positive charge. So atom is made up of electron and proton. If number of charges, that is 13, is more, so obviously it will get plus sign. Yes, ma'am. Yes ma'am. And how many plus? How many plus? The number of 3 plus. it will lose.
The number of electron it loses, that charge it is going to gain. मैम एक क्वेश्चन था, अगर उसका लास्ट सेल में मैम 4 है तो मैम 4 लूज भी कर सकता है, 4 गेन भी कर सकता है, Gain तो भी मैम कर ये सकते हैं। तो मैम नहीं। ये कैसे डिसाइड करेंगे वो मैम लूज करेगा या फिर गेन करेगा? देखो मैक्सिमम अगर 4 है तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, नॉन मेटल। ठीक है, क्या कंसिडर करते हैं कि वो क्या होगा, नॉन नॉन मेटल। जैसे कार्बन जो है उसके लास्ट शेल में 4 है। ओके, इन द लास्ट शेल देयर इज 4 इलेक्ट्रॉन,